اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ مروجہ دین اسلام میں جو کہ روایات کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، گڑھا گیا ہے، یہ قرآن سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس مروجہ دین میں جو روایات پر بنایا گیا ہے نے تقدیر کا مسئلہ کھڑا کیا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہلتا۔ مشہور بات ہے نا، ہم اکثر کہتے ہیں پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو یہ بات کہاں سے لی ہم نے؟ یہ بات ہم نے روایات سے لی۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ عمرا نے، حکمرانوں نے علماء کے ساتھ، مذہبی پیشوائیت کے ساتھ اس وقت مل کر یہ چیز پیدا کی، یہ عقیدہ بنایا کہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، تاکہ جو خرابی پیدا ہوئی اس ملوکیت سے، اس بادشاہ سے، اس طرز حکمرانی سے، اس لوگ ان کی طرف نہ آ جائیں، حکمرانوں کی طرف نہ آ جائیں، جو کرنے والے ہیں لوگ ان کا گریبان نہ کہیں پکڑ لیں۔ لہٰذا ان لوگوں کا رخ موڑنے کے لیے یہ عقیدہ بنایا گیا کہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے۔ اور میں عرض کیا کروں کہ یہ جو غربا ہیں الو کے پٹھے، یہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور اسی پر ہی، کیونکہ ان کو سمجھایا ہی یہ گیا ہے، ہمیں سمجھایا ہی یہ گیا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تم اگر غریب ہو تو یہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اگر کوئی امیر ہے تو اس کو اللہ نے امیر بنایا ہے، اس پر کوئی آپ کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر غریب ہو تو اللہ نے تو ایسا، نہ جانے اس کی کیا کیا حکمتیں، پھر آگے ضرورتیں بہت سارا لاجک اور دلیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے غریب رکھا ہے، غریبوں کی ضرورت ہے، امیر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ غریبوں کو دیں تو ثواب کمائیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جو عقیدہ ہے، یہ امارت و غربت والا، کہ یہ امور تکوینی میں سے ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ جو تقدیر جس طرح یہ کیا جاتا ہے، تقدیر ہے وہ الگ چیز ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ بندہ آزاد ہے انسانی دنیا میں، یہی ایک الگ سے چیز ہے کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے، یہ بھی پہلے سے طے ہے۔ جب عالم خلق بنا اس وقت ہی طے کر دی گئی کہ انسان آزاد ہوگا۔ یہ معلوم تم جیسے تمہارا دل چاہے کام کرو، اور بھی بہت ساری آیات ہیں حامیم سجدہ کی، جیسے تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو۔ انسان آزاد ہے، اسی لیے اس کا حساب کتاب ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ حساب کتاب اسی لیے ہے نا، یہ بندہ آزاد ہے۔ اگر یہ باقی مخلوق کا حساب کتاب نہیں ہے، جانوروں کا نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کو عقل نہیں ہے، ارادہ اور اختیار نہیں ہے، بندے کو دیا گیا ہے، اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا ہے۔ میں اپنے کام کا خود ذمہ دار ہوں، اسی لیے مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ عجیب و غریب ہے ہمارا معاملہ، وہ بات ہم اللہ ہی کرتا ہے، یہ کام کس نے کیا؟ آپ یہ مروجہ جو دین ہے اس میں ہے نا یہ بات، اور یہ بات کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ روایات سے لیتے ہیں، روایات سے ثابت کرتے ہیں مسئلہ تقدیر کو، اور اس پر بولنے پر بھی پابندی ہے، یہ بھی روایات کہتی ہیں، بات بھی نہیں کرنی آپ نے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو کوئی کام آپ نے اس پر بولنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، اتنی اہم بات ہے، آپ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس پر پھر بات نہیں کرنی کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ شیطان کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کر دی کہ یہ عقیدہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، کن نے بنایا مل کر؟ یہ حکمرانوں نے بنایا، مولویوں کے علماء کے ساتھ مل کر، مذہبی پیشوائیت کے ساتھ مل کر، کیونکہ ان کی جو حرام زدگیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، کہ لوگ ان کی طرف نہ آئے،
उनकी तरफ ना आए। उनसे अपना रुख मोड़ने के लिए जरूरी था कि इनका रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दिया जाए। जब अल्लाह की तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर अल्लाह को किसी ने क्या कर लेना है, और वहां भी जवाब फराम कर देने। वो बादशाह है, उसकी हिकमतें हैं, बेनियाज है, वो चाहे लखों कख कर दे, कखों लख कर दे, जो उसकी मर्जी है वो कर दे। ये वो यानी कि कोई उसका कायदा कानून नहीं है, जो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कोई असूल और ज़ाब्ता उसके यहाँ नहीं है। ये तस्वर भी हमने रवायात से अल्लाह के बारे में बनाया। यहाँ मैं ये बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो तकदीर का मसला उठाया गया, ये किसने उठाया, क्यों उठाया, कहाँ से ये पैदा हुआ, जो जानबूझकर पैदा किया गया, ताकि हम जो जिम्मेदार हैं खराबी के, उनकी तरफ लोगों का रुख ना हो। आप देख लें हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, करने वाले कौन है? जैसे हम बैड गवर्नेंस कहते हैं, उसकी वजह से कितनी खराबियां पैदा हो रही हैं आपके सामने। अगर थोड़ी सी हमें सूझबूझ हो तो वाज़ेह नजर आता है। मगर अगर सब कुछ अल्लाह ही करता है, अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है, तो फिर कौन वो दुरुस्त कैसे हो? फिर वही रह जाता ना तरीका कि आप नमाजें पढ़ें, बस आप जो तस्बीहात ज्यादा करें, अब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, वो मसला हल कर दे। फिर वही जबरी अकीदा कि अल्लाह ही सब कुछ करता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये अकीदा शैतान का है और मुशरिकीन मक्का का है। इसका ये शैतान का किस तरह कि उसको जब उससे कहा गया ना कि तू हुक्म क्यों नहीं माना, तो उसने अल्लाह से कहा कि मैंने सरताबी कैसे बरती, अगवैतानी, तूने मुझे गुमराह किया है। कितनी वाज़ेह बात है। ये सूरत आराफ की 16 नंबर आयत है और हिजर की 39 नंबर। मैं तो बंदा मजबूर हूं, ये तो तूने किया है। शैतान ने क्या कहा, अगवैतानी, तूने मुझे गुमराह किया है। ये तो शैतान की बात होगी, उसका अकीदा हो गया। आगे आप देखिए मुशरिकीन मक्का का, अगर तू ना चाहता तो मैं मासीयत अशार कैसे होता। यही रवश दुनिया में कफार और मुशरिकीन की होती है, उन्होंने अपनाई। वो भी अपने माल का जिम्मेदार अपने आप को करार नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि अगर अल्लाह की मशीयत में ऐसा ना होता तो हम कुफर और शिरक की रवश कैसे इख्तियार कर सकते थे। या जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, कहते हैं हम या नहीं कहते। यही बात मुशरिकीन मक्का कहते हैं, यही बात शैतान कहता है। अब उसने उधर अगवैतानी कही। और ये देखें आप सूरत अनाम की 148 नंबर आयत, ये क्या कहते हैं, साजकुलुल्लज़ीना अशरकू लौ शा अल्लाह मा अशरकना वाला आबाओना। आगे चलती है, जब तू इन मुशरिकीन से कहेगा कि तुमने ये क्या रवश इख्तियार कर रखी है, तो वो इसके जवाब में कहेंगे अल्लाह की मशीयत ही ऐसी थी। अगर अल्लाह ऐसा ना चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाउजदाद। क्या है, कुरान ही है ना, खोल के देख लें आप। अनाम की 148 नंबर। अल्लाह की मर्जी से, ये मुशरिकीन का कीदा है। हम जरा नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं। शैतान का कीदा है, शैतान भी यही कहता है कि अल्लाह ही करता है सब कुछ। अगर तूने मुझे गुमराह कर दिया, वो देख लें आप, हवाला देख लें, और आपकी 16 नंबर। हाँ जी, हकीकत को इससे कोई वास्ता नहीं। अल्लाह ताला ने आगे इसी 48 नंबर में इनसे कह दो कि जो कुछ तुम कहते हो तुम्हारी अपनी क्या सराइयां और जहालत है, हकीकत को इससे कोई वास्ता नहीं। हम भी ऐसे करते हैं, हम भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं। अकल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा इनाम है। इनाम यही, इसीलिए ये इसको अशरफुल मखलूक, बाकी मखलूकात से ये बढ़ता रहा, ये अकल की बुनियाद पर। लेकिन इस अकल ने क्या करना है, वही को समझना है, वही के ये नीचे है। सूरज ज़ुखरफ में है कि जब तुम इनसे ये सवाल करते हो तो ये इसके जवाब में कहते हैं कि लो शार रहमानो माबद ना हम, अगर अल्लाह को मंजूर होता तो हम कभी इन मबूदान बातिल की इबादत ना करते। हम क्या करें, अल्लाह की मर्जी ही ऐसी थी। इंसान उसकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकता है, लिहाजा हम मजबूर हैं। कहा मालाहुम बेजाले का मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यखरुसून। ये ज़ुखरुफ की 20 नंबर। ये यकसर जहालत है, हमाकत है, किज़ब है, इफ्तरा है। आगे आप थोड़ा सा और सूरत यासीन की भी मिसाल देख लें कि जब इन सरमायादारों से कहा जाता है, मालदारों से कहा जाता है, उमरा से कहा जाता है कि अपनी दौलत को खुला रखो कि इन गरीबों को भी रोटी मिल सके, तो ये कफार मोमिन से कहते हैं खुदा रखो, इनको भी दो, कोई ऐसा निज़ाम डेवलप करो कि इनके भी बुनियादी जरूरियात रोटी का बंदोबस्त हो। तो कहते हैं अनुत ए मो
من लो यशा अल्लाह अतामहु। वाह, तुम ये अजीब बात कहते हो, अगर अल्लाह को मंजूर होता कि ये भूखे ना रहें तो वो इन्हें जरूर रिज्क दे देता। इनके भूखे नंगे रहने से साफ जाहिर है कि अल्लाह ये चाहता ही नहीं कि इन्हें रोटी कपड़ा मिले। लो जी, अब अल्लाह की मर्जी है ऐसे, वो ऐसे ही करे। इस पर हम बहुत सारी दलीलें दे देते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया है। हाँ जी, गरीबों को रखा नौकर चाकर हमारे काम करें, और उमरा जो है वो उनको देकर स्वाब हासिल करें, और बहुत सारी दलीलें हमारी खुद साख्ता बनाई हुई दलीलें। भाई बुनियादी जरूरतें रियासत ने पूरी करनी और हर एक की करनी। तो मैं ये अल्लाह की मर्जी, ये कीदा किसने बनाया, कहाँ से बना, बिलरुगम यानी के मुकाबले के तौर पर, कुरान के मुकाबल के तौर पर ये चीज, कुरान कुछ जो कुछ कुफार और शैतान के बारे में कह रहा है कि वो ये कहता है, हमने अपना कीदा ही वो बनाया हुआ है। देख लो क्या फर्क है इसमें, बात को समझते नहीं है। आगे फिर हमने और ही तवील कर दी है कि अल्लाह की मर्जी कुछ और है, रजा कुछ और है। ये मर्जी उसकी ये थी कि इन गरीबों को गरीब पैदा करे, अमीरों को अमीर, उसने ऐसा कर दिया। और रजा उसकी ये है कि ये इनको खाना खिलाने में उसने अपनी रजा रख दी। रजा नहीं कि रजा और मर्जी और जो है उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया, उसकी रजा को और उसकी मशीयत को अलग अलग कर दिया। भी देखें, जब उसने अपनी मशीयत से आलम खलक किया तो अपनी उसमें रजा नहीं थी क्या? उस वक्त जब उसने कहीं किसी को अमीर रखा, किसी को गरीब रखा, तो उस वक्त उसकी रजा नहीं थी। रजा और मशीयत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? उसकी मशीयत जब बनी, जब उसने आलम अमर से आलम खलक पैदा किया और कुन कहा, लफज कुन कह के ये सब कुछ बन गया, तो वो उसकी क्या मर्जी से नहीं हुआ? रजा किसे कहेंगे? मर्जी से किया ना उसने ये सब कुछ, जो उसने मर्जी से तय किया। बाकी चीजों की हदायत उनके अंदर रख दी और हमारी इंसानों की हदायत बाहर से बंदोबस्त कर दिया। इसकी मर्जी थी ना, उसकी काम तो किया उसने, लेकिन अपनी मर्जी से किया। तो मेरे भाइयों, ये किस तरह अलग अलग कर सकते? ये हम डंडी मारते हैं, डंडी क्या, डंडा मारा है दीन इस्लाम पर। इतना बड़ा काम हमने करके दीन को बदल के रख दिया। उसकी मशीयत और उसकी रजा अलग अलग है, कैसे अलग अलग हो सकती है? जब मशीयत थी उस वक्त। तो जो मैं अर्ज करना चाह रहा था यही बात कि अल्लाह के बारे में ये तकदीर वाला कीदा जो है, ये मरवजा दीन में जो रिवायात से बना है अल्लाह के बारे में, ये एक गलत कीदा भी जो बना है, ये इसी वजह से बना है। और इस दीन का हिस्सा जो हमारे पास है, अब देख लें, हम बाकी सब कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, क्या फायदा उन चीजों का? जब ईमान में अल्लाह पर ही ईमान हमारा खराब हुआ, अल्लाह पर ईमान खराब हुआ तो बाकी ईमान की क्या हैसियत रह जाती है? अगर ईमान ही खराब हो गया तो बाकी अमाल की क्या हैसियत है? जितना भी हम करते जाए, तो देखें ये हम शायदा कर रहे हैं आपके सामने, लोगों से पूछ लें, अपने गिरेबान में जान के देख लें हम क्या कहते हैं। मैं तो जितने बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों की बात सुनता हूँ वो ऐसे ही करते हैं, हर चीज मन जान वाला है, बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदा, ये अल्लाह के अल्लाह ऐसा हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है। अजीब सी बात है। बहरहाल ये मैं बात करना चाहता था कि ये जो मरवजा दीन इस्लाम है, जो रवायात के ताने बाने से बनाया गया, उसमें ये बात है अल्लाह के बारे में। कुरान से माखूज दीन में ये हो ही नहीं सकता। कुरान ये बात कह रहा है, कुरान कह रहा है कि शैतान ये कहता है, मुशरिकीन मक्का ये बात करते हैं। बस मेरे भाइयों, ये बात मैं अर्ज करना चाहता था, आपसे अर्ज कर दी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।